Morning, everyone. We are going to start with today's lecture. Just, just one more minute. So we have finished with the directional derivative, and the rest of the questions are there in the tutorial sheet and book. So you can try from there. And in notes also there are few questions extra, but you will be able to understand them because we have finished with the directional derivative. So the next thing we are going to talk about in the same chapter is extreme values. So the meaning of extreme values is maxima or minima, right? So it is one of the very important applications of calculus. You can say that if somebody asks you that why we are studying derivatives, because we are studying it, then you need to answer, okay, there should be some applications of it. So this is one of the important applications of these studying derivatives and limits, that we can find the maximums or the minimums of the functions which are having real life applications. So like a temperature profile is there. So at what point the temperature on the surface is maximum? It can be many applications. As you will see, there will be very many questions discussed in this chapter. So that is about we will be finding the maximum and minimum of the function. So these maximum and minimum values combined in combination, they are called extreme values, right? So since we are dealing with the chapter in which we have function of more than one variables, rather two variables or three variables we are doing. So firstly, I would like to discuss function of one variable. You know these concept already, so I'll quickly revise that what we used to do when we have function of one variable if you're asked to find the maxima or minima of this. I'll be just explaining you the meaning of the word maxima and minima. For definitions, exact definitions, you can read the book, and in my notes also I've written the exact definitions. I'll be explaining you the meanings. Right. So tell me, first of all, you need to tell me what is the meaning of maximum minimum. Maximum is any point where the function is assuming its maximum value. So to start with an example, say I give you an example, y is equal to sine x. Then anybody can tell what is the maximum value of this. So the maximum of sine x is 1. Right? So we know that. And there are two things always we have to answer. What is the maximum value and at what point of the domain it is obtained, right? So you see the graph of sin x, we know this is the graph of sin x. So this is the maximum value on y axis जो आप draw कर रहे हो, ये value जो है this is 1, this 1 is this value, but at what point this is obtained? So this is pi by 2, we know this is x. So the maximum value of the function is 1 obtained at x is equal to pi by 2. Similarly, you can tell me minimum value of sin x at x is equal to minus pi by 2, and what is that minimum value? Minus 1. So there are always two things to be answered. At what point we have that maxima or minima, and then what is the value at that point, right? So this was a very simple example of function of one variable in which you know without doing any calculation. हमने यहाँ पे कुछ भी calculus नहीं लगाया है, function का derivative नहीं निकाला है. This is just by graph we have done this because ये इतना easy function है, इसके हमें already प्रॉपर्टीज पता है, हमने ग्राफ ड्रॉ किया और उसका मैक्सिमा मिनिमा बता दिया. सो ये एक सबसे आसान तरीका होता है दैट ग्राफिकली यू कैन आंसर. इफ यू नो द एग्जैक्ट ग्राफ ऑफ दैट function, you draw the graph and try to find from there the maximum or the minimum. But this is not general approach, because if the function is very complex, the complicated function, so in that case we will be firstly investing a lot of time in drawing the graph of it and then looking at maximum minima. In that case we will be trying other approach, not the graphical one, right? So for example, again, I ask you this question,
y is equal to x square. This is our example number 2. So what is the maximum of this function? Y is equal to x square. Yes. Can anybody answer? What is the maximum of y is equal to x square? Infinity. Yeah, means actually we say not defined. Means not defined means it's not attainable. इन्फिनिटी पे जाके अटेन होना मीन्स एक्चुअल में अटेन नहीं होना. ओके आपको मैक्सिमम मिलेगा ही नहीं. somebody will give you a value कि इसकी मैक्सिमम वैल्यू ना 10⁻⁹ है. इमीडिएटली आई कैन गिव सम पॉइंट x जिसपे जो वैल्यू है ग्रेटर देन 10⁻⁹ मिलेगी. सो दैट मीन्स आप कितनी भी बड़ी से बड़ी वैल्यू इस फंक्शन को असाइन करो और बोलो इसकी मैक्सिमम वैल्यू है, वो क्वालिफाई नहीं करेगी मैक्सिमम की डेफिनेशन के लिए. बिकॉज मैक्सिमम की डेफिनेशन होती है एक ऐसी वैल्यू जो सबसे बड़ी हो. एफ सी इज ग्रेटर देन इक्वल टू एफ एक्स फॉर ऑल एक्स इन द डोमेन. तो जो एफ सी होता है, सी इज कॉल्ड the point of maximum and fc is called the maximum value, right? तो यहाँ पे वो डिफाइंड नहीं है क्योंकि कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं है जो सारे वैल्यू से बड़ा हो. सो सिमिलरली यू कैन हैव द डेफिनेशन ऑफ मिनिमम. if there exists a point c such that this happens for all x, c भी obviously डोमेन का ही पार्ट है. then C is called the, मैं रफली लिख रही हूँ, ये सिर्फ समझ लो, एग्जैक्ट डेफिनेशंस आपको बुक में मिल जाएंगी. C is called a point of minimum and in that case we know FC is called the minimum value, right? So now let's change the question a bit. What I'm trying to do, I'm asking you now, this is the question, find the maximum over the interval 1 to 2. So now I restrict the domain. I give you a domain 1 to 2. Let's just even more simplify. Let's just take the closed interval. Let's take the closed interval. Yeah, I will tell you the reason of taking the closed interval. Okay. Can now you tell me the answer? Y is equal to x square. What is its maximum over this interval? 1 to 2. 4. Everybody knows the answer. Why that is so? Because we know y is equal to x square. It's an increasing function, so we know it's a parabola, vertically upwards parabola. If you draw the graph of it, again मैंने ऐसा एग्जांपल लिया है, हमें ऑलरेडी इसका ग्राफ पता है, तो मैं ग्राफिकली भी देख सकती हूँ और अदरवाइज वी नो द टेक्निक, हम सॉल्व करके भी देख सकते हैं. सो y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का मैक्सिमा एनीबडी कैन टेल. मैंने इंटरवल बताया था 1 to 2, तो 1 to 2 में एज यू कैन सी इट्स इंक्रीजिंग, सो 2 पे ही मैक्सिमम होगा. 2 पे मैक्सिमम क्या होगा, 2 सब्स्टिट्यूट करोगे तो वो आ जाएगा 4. y max is equal to 4. so यहाँ से एक चीज हमें इन दोनों एग्जाम्पल से क्लियर हो गई है that what is there, that the maxima which was not existing there started to existing in this example. The difference introduced was interval. What kind of interval we introduced? A closed interval. So not an open interval but a closed interval. Open interval लेने से क्या प्रॉब्लम होगा, I tell you. अगर आप 1 to 2 लिखते हो तब आपको दिखेगा कि अच्छा इसका मैक्सिमा 2 पे ही आना है, बट 2 इज नॉट अ पार्ट ऑफ योर डोमेन. ये आपके डोमेन है. 2 इज नॉट अ पार्ट ऑफ योर डोमेन बिकॉज दैट हैज बीन इंक्लूडेड, दैट हैज बीन एक्सक्लूडेड. तो 2 पे मैक्सिमम नहीं होगा तो somebody will claim अच्छा 1.999 पे होगा. देन somebody will say 1.999 पे होगा. देन somebody will say नहीं 1.999999 पे होगा. So you can keep on doing this infinitely many times. Even between this point and the point 2 there are infinitely many real numbers. I hope you understand that, right? Because decimal representations you can do that. So in this case, if the interval is open, in this case also nobody can tell me the maximum value because अगर 2 इंक्लूडेड होता फिर वो 2 पे ही होनी थी, बट क्योंकि 2 इंक्लूडेड नहीं है तो हमें पता है कि मैक्सिमम जो है 2 से थोड़ा कम पे है. अब वो 2 से थोड़ा कम नो इज नेवर डिफाइंड, राइट? बिकॉज देयर इज नो स्पेसिफिक पॉइंट which can be it can be as close to 2 but nobody can define that point. I hope this is clear.
सो ये क्लोज्ड इंटरवल का रोल होता है यहाँ पे, कि क्लोज्ड इंटरवल होने से और बाउंडेड, ऑब्वियसली मैंने बाउंडेड लिया है, यहाँ पे डोमेन क्या था, अनबाउंडेड। आपका जो डोमेन था वो अनबाउंडेड था, मीन्स जब मैंने x की कोई वैल्यू नहीं बताई आपको, मतलब x बिलोंग टू माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, सो अनबाउंडेड डोमेन के ऊपर मैक्सिमम नहीं एग्जिस्ट कर रहा। किसी फंक्शन का हो भी सकता है, ऐसा नहीं है, ये सिर्फ एक पर्टिकुलर एग्जांपल से आई एम ट्राइंग टू कन्वे यू समथिंग, बट इस फंक्शन का मैक्सिमा एग्जिस्ट करा बाउंडेड एंड क्लोज्ड इंटरवल। बाउंडेड मींस जो दोनों इंटरवल की बाउंड्स हैं वो फाइनाइट हैं, इनफाइनाइट नहीं है, लेंथ ऑफ द इंटरवल इज फाइनाइट, और क्लोज्ड इंटरवल है, क्योंकि ओपन इंटरवल लेने से क्या प्रॉब्लम हो जाता है वो भी मैंने आपको समझा दिया, राइट? यस, yes, if the interval is closed, so you can always have it over the this. Okay, so let's just take one more example. uh, okay, there can be plenty of examples, but let me tell you what we are doing. ये तो हम graphically कर रहे हैं, so what is the other technique? The other technique is everybody knows how to find the maximum. कैसे find करते हैं? हम derivative लेते हैं. If this question is given to you, okay, same question, 1 to 2, find the maximum. राइट? सपोज हमें ग्राफिकली नहीं करना, हमें सॉल्व करना है थ्योरेटिकली, सो वी नो व्हाट इज द वे ऑफ फाइंडिंग मैक्सिमा एंड मिनिमा, वी टेक द डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन, सो दैट विल बी 2x एंड देन वी पुट द डेरिवेटिव इक्वल्स टू 0। वहां से आते हैं हमारे पास पॉइंट्स, दीज पॉइंट्स आर नोन एज द क्रिटिकल पॉइंट्स। क्रिटिकल पॉइंट्स इनको बोला जाता है बिकॉज दे आर द कैंडिडेट्स फॉर द मैक्सिमा एंड मिनिमा। तो जो भी dy बाई dx को 0 पुट करके पॉइंट्स आते हैं, दे आर योर पॉसिबल कैंडिडेट्स ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा, बट देयर इज नो गारंटी दैट देयर एग्जिस्ट मैक्सिमा मिनिमा। आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हम मैक्सिमा मिनिमा ढूंढ रहे हैं, सो ढूंढने के लिए हम वो पॉइंट्स ढूंढते हैं जहां पे डेरिवेटिव 0 है, तो वो पॉइंट्स कैंडिडेट्स बन जाते हैं कि अच्छा इनमें से कहीं पे मैक्सिमा मिनिमा हो सकता है, बट हमेशा नहीं होता है। लाइक इन दिस एग्जांपल एज यू कैन सी, ये x इज इक्वल टू 0 तो बिलोंग ही नहीं करता, 1 to 2 में है ही नहीं है, सो दिस इज रिजेक्टेड, इसको हम ले ही नहीं सकते, राइट? हमें तो इस इंटरवल में इसको आंसर करना है, सो x इज इक्वल टू 0 पे इस इंटरवल में इट डज नॉट बिलोंग, सो this will not be a candidate, right? So in this interval, so आप यहाँ से conclude करोगे कि इसका तो कोई maximum minima आया ही नहीं, because आपने 0 निकाला but 0 तो डोमेन में नहीं है, तो आप बोलोगे कि no maxima or minima. So is this right? Can you tell me this statement is right कि no maxima or minima for this question? Yeah, this is not right. Why this is not right? यस, जो लोग कह रहे हैं x इक्वल टू 0 पे मिनिमा है, दैट इज करेक्ट, बट वो डोमेन के बाहर है, हम उस पर भी आएंगे, बट 1 to 2 इंटरवल x इक्वल टू 0 को इंक्लूड नहीं करता है, तो ये मिसकंक्लूजन हो सकता है कि ये इंटीरियर जो क्रिटिकल पॉइंट्स आते हैं यहाँ से इंटीरियर होना चाहिए आपकी डोमेन का, अगर नहीं है तो दैट शुड बी थ्रोन आउट, राइट? बाउंड्री पॉइंट्स, सो जो बाउंड्री पॉइंट्स हैं इंटरवल के 1 and 2, they are also the candidates for maxima and minima, right? So remember this. ये सब मैं आपको इसलिए पढ़ा रही हूँ बिकॉज हमें ये चीजों को जनरलाइज करना है फंक्शन ऑफ 2 वेरिएबल्स में। वहां पे हमें ग्राफिकली चीजें नहीं देखनी है, क्योंकि हम ग्राफ ड्रॉ नहीं करेंगे, बिकॉज यू नो वहां पे 3D ग्राफ्स 3D सर्फेसिस बनते हैं फंक्शन के, z is equal to fx,y, we cannot draw graphically them, so वहां पे हम प्योरली कैलकुलस ही करेंगे, वहां पे प्योरली डेरिवेटिव्स के बेस पे ही करेंगे, बट वन वेरिएबल में वी कैन साइमल्टेनियसली विजुलाइज देयर मीनिंग्स, तो आपको वो याद रखना कॉन्सेप्ट को इजी होता है। सो इस एग्जांपल से क्या चीज क्लियर हुई कि जो आपके कैंडिडेट्स हैं मैक्सिमा मिनिमा के, मीन्स कैंडिडेट्स वर्ड यूज कर रही हूँ मैं, मीन्स पोटेंशियल पॉइंट्स एक्चुअली जहां पे मैक्सिमम मिनिमा आ सकता है, एक तो वो आते हैं
dy by dx को 0 पुट करके, और एक वो आते हैं कहाँ से, बाउंड्री पॉइंट्स पे, राइट। एक और होता है, इफ यू टेक द एग्जाम्पल ऑफ दिस, let me just give you, everybody is everybody familiar with this function? You know the graph of this function, y is equal to x raised to power 1 by 3. Okay, so try finding its maxima and minima. Let's just not talk about the graphs. X raised to power 1 by 3, try finding its maxima and minima. How will you find that? Okay, so यहाँ पे भी okay, actually this example will not work. ये तो हमारे पास जो है x is equal to 0 is a stationary point here. यहाँ पे because yeah, this way it will not work. Let me take another example. Let me take another example. Okay, just give me one moment. So let me just give you another example for finding maxima and minima. We'll be having a concept clear from there. Okay, so the way you do was you found dy by dx 1 by 3 x raised to power minus 2 by 3. Since this is always positive, so that means what is happening? This is a increasing function, right? So वैसे भी dy by dx को 0 पुट करके यहाँ पे कोई पॉइंट नहीं आएगा, because this is as you can see x की पावर नेगेटिव है, so it's not going to be 0 anywhere. So that's why we are not going to get any maxima or minima for this function, unless or until here also I'll give you some interval, like over a particular interval. So the graph is just looking like this. So from 0 it passes like this, but it's monotonically increasing actually, right? So this is more than sufficient example. Let's not do more examples for function of one variable. What I tried and wanted to convey is being conveyed. So the conclusion is this: so these are the candidates for maxima and minima, these are the points and these are the points, and इसमें एक और include होता है where it is not defined. Either dy by dx is 0 or dy by dx is not defined. So can you give me an example of a function where dy by dx is not defined? Dy by dx is not defined. So yeah, yeah, this is at x equals to 0 is not defined. But for that function, actually maxima and minima does not exist. Some other example?
यस उदय। मैम ये y इक्वल टू एक्स की पावर 1/3 में हम ये लिखेंगे कि कोई भी मैक्सिमा या मिनिमा एग्जिस्ट नहीं करता। हाँ, बिकॉज यू सी इट्स इंक्रीजिंग फंक्शन ना, उसका डेरिवेटिव पॉजिटिव है तो वो बढ़ता ही जा रहा है। तो नॉट डिफाइंड हो अनलेस, गया। हाँ, नॉट डिफाइंड नाइदर मैक्सिमा नॉर मिनिमा अनलेस और until you are asked it's some interval is given to you, some specific interval is given to you. ये क्वेश्चन हमें नहीं करने हैं, ये वन वेरिएबल के क्वेश्चंस हैं, हमें इनको टू वेरिएबल्स के लिए करना है। ये सब मैं रिकॉल करा रही हूँ कि वन वेरिएबल के लिए हम डेरिवेटिव से जो है आइडेंटिफाई चीजें कर सकते हैं। यस मैम। मैम ये जो और फर्स्ट कंडीशन में आपने एंड नॉट डिफाइंड लिखा है मैम, इस अगर dy by dx नॉट डिफाइंड हो तब भी हम मैक्सिमम मिनिमम लगाते हैं मैम, उस पॉइंट भी Actually, मैक्सिमम। I tell you, I'm finding that example actually. This is the graph. Have you looked at this kind of functions, this kind of points? So these are known as the cusp points. इंटरसेक्शन ऑफ टू कर्व्स। Yeah, and are you familiar with these kind of points? There are cusps, there are nodes, they are non-differentiable functions. So हमें corner points create हो जाते हैं. Okay, you can take the example of mod x only. यस मैम x You इक्वल can टू take the example of mod x only. So if I take y is equal to mod x, let me move to this page. If I take y is equal to mod x, dy by dx, what is going to be dy by dx? It's not defined. We know left hand derivative is +1, right hand derivative is -1, because this is the graph of y is equal to mod x. इस तरफ से स्लोप -1 है, इस तरफ से स्लोप +1 है, सो नॉन डिफरेंशिएबल है जो आपका फंक्शन जीरो पे, राइट। बट फिर भी यू कैन सी जीरो पे इसका क्या एग्जिस्ट करता है, मिनिमा, राइट। सो जो हम ये टेक्निक लगाते हैं dy by dx को जीरो पुट करके जो पॉइंट्स आएंगे वो, तो कुछ ऐसे भी पॉइंट्स होते हैं जहां पे dy by dx नॉट डिफाइंड है, वहां भी मैक्सिमा मिनिमा हो सकता है फॉर दीज काइंड ऑफ फंक्शन। सो दिस इज वन एग्जांपल यू कैन से कि क्योंकि अगर आपने इसके ऊपर वो टेक्निक लगाई होती कि अच्छा dy by dx निकालो, उसको जीरो डाल दो, देन यू विल से अच्छा इसका तो dy by dx जो है बाकी सब जगह डिफाइंड है बट कहीं भी जीरो नहीं है, बिकॉज यहाँ पे -1 है, यहाँ पे +1 है, और इस पर्टिकुलर पॉइंट पे जीरो पे ये डिफाइंड ही नहीं है। तो आप कहोगे कि इसका कोई भी मैक्सिमम मिनिमा एग्जिस्ट नहीं करता है, बट एक्चुअल में अगर आप इस पॉइंट को भी कंसिडर करो कि क्या ऐसा कोई पॉइंट है जहां पे dy by dx डिफाइंड नहीं है, then if you look for that point, then that point also can be a potential candidate for maxima and minima। जैसे यहाँ पे we know its function का dy by dx is not defined at x equal to 0, so x equal to 0 पे we can have a maxima or minima, but वो graphically हमें actual में पता है कि there is minima, right? So ये मैम हर पॉइंट जो जिसपे डिफरेंशियल नॉट डिफाइंड है वो मैक्सिमा या मिनिमा होगा? नहीं होगा ना, मैं आप दो चीजें कंफ्यूज कर रहे हो, मैं वो इसीलिए सबसे पहले ही बोला था दीज आर द पॉसिबल कैंडिडेट्स। पॉसिबल मींस इनमें से होगा, जितने भी होंगे वो इन्हीं में से होंगे, इनके अलावा बाउंड्री पॉइंट्स में से होंगे, राइट। नहीं मैम, जैसे dy by dx इक्वल टू 0 पे जो पॉइंट्स आते हैं वो तो कंफर्म होता है कि वो मैक्सिमा या मिनिमा में से कोई ना कोई पॉइंट तो होगा पक्का, लोकल मैक्सिमा तो होगा। क्योंकि आप इस तरह के फंक्शंस को देख रहे हो जो स्मूथ फंक्शंस हैं, इनमें जब भी टेंजेंट जीरो होती है, dy by dx को जीरो होने का मतलब है स्लोप इज पैरेलल टू द एक्स एक्सिस, मींस हॉरिजॉन्टल टेंजेंट है वहां पे, तो वहां पे क्लियर है कि कर्व ने टर्न लिया है, तो इसीलिए टर्न लेने का मतलब है या ऐसे टर्न लिया होगा या ऐसे टर्न लिया होगा, सो या मैक्सिमा होगा या मिनिमा होगा। इसीलिए ये हमारे दिमाग में बैठ जाती है ये चीज कि जैसे ही dy by dx जीरो हो वहां पे मैक्सिमा या मिनिमा आएगा ही आएगा, राइट। तो कोई ऐसा एग्जांपल होगा मैम कि जिसमें dy by dx इक्वल टू 0 आए लेकिन वहां पर मैक्सिमा मिनिमा ना हो? ये एग्जांपल देखो, dy by dx इज 3x², ये कहाँ पे जीरो है? x इक्वल टू 0 पे। अच्छा, बट dy by dx अदरवाइज क्या है, हमेशा क्या है, पॉजिटिव। यस मैम। हाँ, ये y इक्वल टू x³ का ग्राफ पता है आपको? यस मैम पता है मैम, वर्टिकल टेंजेंट। हम्म, यस हाउ, मैम पता है। या, सो इट्स मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग फंक्शन, मैक्सिमा मिनिमा है ही नहीं इसका, ये एग्जांपल भी यही था एक्चुअली
ये भी इसी का ही एग्जाम्पल था, बट इसमें था कि जीरो नहीं बन रहा था dy by dx, तो यहाँ पे यू कैन हैव दैट अंडरस्टैंडिंग dy by dx से जीरो भी बन गया है, हमें पॉइंट मिल भी गया है, बट स्टिल ये नहीं है, दिस इज नाइदर मैक्सिमा नॉर मिनिमा, राइट। सिमिलरली ये ऐसा एग्जाम्पल था जिसमें dy by dx यहाँ पे x इक्वल टू जीरो पे क्या था, नॉट डिफाइंड, बट स्टिल यहाँ पे भी जीरो पे नाइदर मैक्सिमा नॉर मिनिमा। तो ये जो मैंने बताया है, तो ये इसीलिए मैंने पॉसिबल वर्ड यूज करते हैं कि ये जो आप पॉइंट्स निकालते हो जब ये होता है, बट गारंटी नहीं होती कि उनके मैक्सिमा मिनिमा होगा, फिर हम सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट से कंफर्म करते हैं वहां पे कि एक्चुअल में मैक्सिमा है या फिर नहीं है। और बाउंड्री पॉइंट्स को देखना भी जरूरी होता है, क्योंकि अगर आपका फंक्शन इस तरीके का है, राइट, तो आपको तो बीच में कोई पॉइंट मिलेगा ही नहीं जहां पे कर्व चेंज हुआ है, कर्व ने अपना बिहेवियर चेंज किया है, तो आपको लगेगा है ही नहीं, बट बाउंड्री पे मिनिमम और मैक्सिमम हो सकता है। So this is all the reason behind writing this. There are plenty of example जो आपको इनको फेवर में मिलेंगी। फेवर में मीन्स जहां जहां dy by dx जीरो मिला, आपको मैक्सिमम मिनिमम मिलेगा ही मिलेगा इस तरह के फंक्शंस के लिए। जहां जहां dy by dx नॉट डिफाइंड मिला, आपको मैक्सिमम मिनिमम मिल जाएगा लाइक दिस। बट ऐसे भी एग्जाम्पल हैं जो मैंने अभी आपको दिए हैं कि जब भी ये सेटिस्फाइड होते हैं, सो दे आर नॉट sufficient, they are necessary condition, but they are not sufficient for the existence of maxima and minima, right? And additionally boundary points हमें देखना ही होता है। So this is all is there, ये जो सब डिस्कस किया है ये चैप्टर 3 में है थॉमस एंड फिने के। एक्चुअली एक्सक्लूसिवली पहले ये वाला पार्ट हमारे सिलेबस का पार्ट होता था, तो वी यूज टू स्टडी इट इन मच डिटेल। तो जब टू वेरिएबल्स के लिए हम फिर ये पढ़ते हैं तो ये पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ती है, बट सिंस नाउ दिस इज नॉट अ पार्ट ऑफ अवर सिलेबस, so that's why I have to recall it in a hurry. So आप डिटेल में पढ़ना चाहते हो तो आप पढ़ सकते हो, but I have covered all the possible things from there, right? So because आपको मैं टू वेरिएबल्स के लिए डायरेक्टली रिजल्ट्स बताऊंगी, बिकॉज टू वेरिएबल्स में विजुलाइज करके देखना और दिखाना इट्स नॉट पॉसिबल, राइट? Is that fine? Is that okay? So now we are moving towards a function of two variables. For that, I'm going to give you the results. Yes, Vidushi, you have a doubt? एक्सक्यूज मी मैम, मैम जो ये y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर था, तो इसमें अगर हम डेरिवेटिव से कर रहे हैं तो उसका मैक्सिमम नहीं आ रहा था, पर जब हमने ग्राफ से किया तो उसका y मैक्स 4 आ गया था, तो डेरिवेटिव से कैसे आएगा फिर? मैंने वही तो आपको बताया है ना कि dy by dx जैसे ही आपने पुट किया जीरो, तो आपके पास पॉइंट आया जीरो। तो अगर वो इंटरवल से मैं आपको इंटरवल दे दूं -1 to 1, तो -1 to 1 में इस फंक्शन का ग्राफ है ऐसा, तब आपको कहेंगे अच्छा जीरो इज वन ऑफ द कैंडिडेट, डोमेन में भी है। फिर हम जीरो पे कंफर्म करने के लिए कि एक्चुअल में मैक्सिमा है कि मिनिमा है, हम सेकंड डेरिवेटिव निकालेंगे, फिर हम Yes, ma'am. देखेंगे सेकंड डेरिवेटिव पॉजिटिव आया, अच्छा जीरो पे मिनिमम है। बट मैंने जो आपको इंटरवल दिया था वो था 1 to 2, तो उसमें जीरो था नहीं, तो 1 to 2 में वैसे भी यू कैन सी यहाँ पे इतने इंटरवल में फंक्शन में कोई चेंज नहीं है। चेंज मीन्स उसका मोनोटोनिकली बिहेवियर है, देर इज नो शिफ्ट, देर इज नो बिहेवियर चेंज फ्रॉम इंक्रीजिंग टू डिक्रीजिंग और डिक्रीजिंग टू इंक्रीजिंग, राइट? सो दैट्स Yes, वाई ma'am. 1 पे मिनिमा, 2 पे मैक्सिमा। तो जो मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शंस होते हैं वो सबसे आसान होते हैं डील करने, क्योंकि पता है कि उन्होंने बीच में कहीं भी रास्ता नहीं बदलना है, वो बाउंड्रीज पे ही मैक्सिमम मिनिमम होंगे उनके। बस आपको पता होना चाहिए ये ऐसा वाला है कि ऐसे वाला है, लेफ्ट पे मैक्सिमा है लेफ्ट बाउंड्री पे कि राइट बाउंड्री पे मैक्सिमा Yes, है। ma'am. मतलब हमें ऐसे फंक्शंस के ग्राफ ही पता होने चाहिए तभी हम कर हाँ सकते नहीं हैं। नहीं, हाँ ये जरूरी नहीं है ग्राफ पता होने चाहिए। मैं आपको ग्राफ नहीं भी पता तब भी देखो हमने वहां पे खत्म मिनिमा आ किया गया। था ना, हाँ मिनिमा आ गया, तो ग्राफ पता होना जरूरी नहीं है, इट इज जस्ट ग्राफ की हेल्प से हमें वो चीजें दिख जाती हैं तो याद रहती हैं। तो ग्राफिक हेल्प्स यू, बट देयर विल बी मेनी फंक्शंस जिनके ग्राफ बनाने बड़े डिफिकल्ट होते हैं, तो वहां तो प्योरली वी जस्ट हैव टू रिलाई, दैट इज वाई ये रूल्स बनाए जाते हैं कि देखो इस रूल में Yes, कहीं नहीं ma'am. बता रहा ना ये कि ग्राफिकली देखो, ये बता रहा है कि Yes, ये ma'am. दिस विल वर्क, कि आप ये पॉइंट्स निकालो और बाउंड्री पॉइंट्स निकालो, उन सबको चेक कर लो। चेक करना कैसे आपको पता है, वो सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट से कंफर्म हो जाएगा। बाउंड्री Yes, ma'am. तो वही पॉइंट जब इसमें हमने सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट किया तो हमें सिर्फ मिनिमा ही तो मिला, मैक्सिमम नहीं मिल रहा है।
है नहीं ना बेटा, जो नहीं है वो तो नहीं Yes, मिलेगा ma'am. ना, जो Okay, चीज ma'am. नहीं है वो नहीं मिलेगी. हाँ. Okay. I hope that is clear. So now let's move towards the function of two variables. So for function of two variables, so ये जो test मैंने आपको बताया था, जो ये यहाँ पे बताया था कि this is the way, this is actually called first derivative test. फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट जो है वो हमें पॉइंट्स की लोकेशन बताता है कि जहां जहां dy by dx जीरो है या नॉट डिफाइंड है, वहां पे आपके मैक्सिमा मिनिमा हो सकते हैं. नाउ लेट्स जस्ट डिफाइन द फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट फॉर, अब ये हम सब जनरलाइज करेंगे टू वेरिएबल्स पे. फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट फॉर फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल्स, मैक्सिमा मिनिमा. मैक्सिमा मिनिमा मीन्स कॉम्बिनेशन में उनको एक्सट्रीम वैल्यूज या एक्सट्रीम पॉइंट्स भी बोल सकते हैं. So let's write down the statement of this test. If fxy has a local maxima or minima, local maximum or minimum value at an interior point of its domain, and if first order partial derivatives exist, then so this interior point is some point a comma b. अब हम दो वेरिएबल्स में हैं तो पॉइंट भी आपका it will be a two coordinate point a comma b. Then fx a comma b is equal to 0, fy a comma b is also 0. So the statement is very similar. वहां पे मैंने स्टेटमेंट लिखी नहीं थी वन वेरिएबल में, बट उसका भी मतलब यही था कि फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट हमें बताता है कि अगर मैक्सिमा मिनिमा है, सो ऑब्वियसली अब बाउंड्री पॉइंट्स को देखो कभी भी इन डेरिवेटिव टेस्ट्स में इंक्लूड नहीं किया जाता है, क्योंकि बाउंड्रीज पे डेरिवेटिव्स एग्जिस्ट नहीं करते हैं. एवरीबडी नोज दैट. बाउंड्री पॉइंट्स पे हम डेरिवेटिव्स को एग्जिस्टेंस को अज्यूम नहीं कर सकते हैं, बिकॉज आपकी डोमेन वन साइडेड हो जाती है, राइट. अगर ये इंटरवल है तो इस बाउंड्री पॉइंट पे हम राइट हैंड डेरिवेटिव की बात कर सकते हैं और इस बाउंड्री पॉइंट पे हम लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव की बात कर सकते हैं, बिकॉज इट्स जस्ट वन साइडेड, राइट. So boundary points are never included as a part of the derivative test. It is just, ये तो मैंने additional आपको बताया था कि इन पे भी maximum minimum हो सकता है. They are the additional points. But जो critical points की definition है, that is for the interior points के domain के interior में. तो अब ये derivative test कह रहा है कि अगर function का local maxima या minima है किसी point पे, एंड अगर वहां पे डेरिवेटिव एग्जिस्ट करता है तो वो डेरिवेटिव क्या होगा, जीरो. सो दिस इज द सेम थिंग जो वन वेरिएबल के लिए थी कि dy by dx क्या होना चाहिए वहां पे, जीरो. दैट इज द नेसेसरी कंडीशन फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा. अदरवाइज अब यहाँ पे क्या है, एग्जिस्ट करना चाहिए. एग्जिस्ट करना चाहिए मीन्स अगर एग्जिस्ट नहीं करता है तब जीरो होना जरूरी नहीं है. दैट इज वाई नॉट डिफाइंड वाली कंडीशन भी आती है, राइट. सो यहाँ पे भी वही है कि अगर फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव्स एग्जिस्ट करते हैं वहां पे, उसके डिफाइंड है, देन दे हैव टू बी जीरो एट दैट पॉइंट a कॉमा b. देन अब वो पॉइंट एक्चुअल में मैक्सिमम मिनिमा है, then that has to be zero. So we call these points the critical points. A comma b is called the critical point. सो ये उसी की जनरलाइजेशन है, क्योंकि वहां पे एक ही डेरिवेटिव होता था तो वो जीरो हो जाता था. यहाँ पे दो डेरिवेटिव्स हैं पार्शियल तो दोनों जीरो होंगे. तो क्रिटिकल पॉइंट की जनरल डेफिनेशन क्या हो जाएगी, द पॉइंट्स वेयर fx इज जीरो, fy जीरो. दोनों जीरो होने चाहिए. ये नहीं है कि fx जीरो हो रहा है बट fy जीरो नहीं है, ऐसा नहीं है. ऐसा पॉइंट होना चाहिए जो डेरिवेटिव्स, दोनों डेरिवेटिव्स को साइमल्टेनियसली जीरो बनाए. तो वो पॉइंट्स जहां पे ये दोनों डेरिवेटिव जीरो हैं एंड सॉरी, और यहाँ पे ये जो दोनों डेरिवेटिव्स हैं
वो क्या हो जाए, नॉट डिफाइंड हो जाए, राइट। दोनों यहाँ पे नॉट डिफाइंड होने के लिए दोनों में से एक भी नॉट डिफाइंड हो जाएगा, देन दैट इज फाइन। जीरो होने के लिए दोनों को जीरो होना पड़ेगा, बट नॉट डिफाइंड में दोनों में से एक भी नॉट डिफाइंड हो जाएगा, बिकॉज अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरम स्टेटमेंट this tells you both derivatives, first order partial derivatives exist. So अगर एक भी एग्जिस्ट नहीं करेगा मींस तो फिर जीरो वाली कंडीशन नहीं होगी, फिर वो नॉट डिफाइंड वाली कैटेगरी में चला जाएगा। तो कंक्लूजन इज, आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि आपको वो पॉइंट्स निकालने हैं जहां पे फंक्शन के दोनों पार्शियल डेरिवेटिव जीरो हो रहे हैं या फिर नॉट डिफाइंड हो रहे हैं। दिस कंडीशन विल गिव यू अ लिस्ट ऑफ पॉइंट्स and those points are known as the critical points, and then at those points we will be testing whether where is maxima and where is minima, right? Because theorem की statement है कि अगर maxima minima है तो ये होगा, तो obviously हम उसी direction में जाएंगे। Is this point clear to all? जब हम questions करेंगे तो आपको ये चीज clear हो जाएगी। So we'll start our search at these points. That's why these points are the critical points. So this makes the candidates for extreme values, अब मैं common word use कर रही हूँ, extreme values, candidates कौन से बने, critical points plus boundary points। तो यहाँ पे भी same logic से critical points interior points होते हैं डोमेन के अंदर, और बाउंड्री पॉइंट्स ऑब्वियसली बाउंड्री पॉइंट्स हैं। क्रिटिकल पॉइंट्स कौन से हो गए, ये दोनों जीरो या फिर दीज आर नॉट डिफाइंड। नाउ आई हैव यूज्ड अ वर्ड लोकल, सो कैन यू टेल मी द मीनिंग ऑफ दिस लोकल? लोकल वर्ड से मीनिंग क्लियर है सबको? मैम लोकल मतलब मैम सिर्फ उसी के आसपास। मैम उसका मतलब ये नहीं है कि मैम जैसे हमारे पास 2-3 मैक्सिमा आ गए तो मैम वो तीनों लोकल होंगे, लेकिन उनमें से एक होगा जो एक्चुअल में तीनों में से सबसे बड़ा है, लेकिन अपनी नेबरिंग उसमें तीनों ही सबसे बड़े होंगे। ठीक है, या यू आर राइट, एक्यूरेट। सो आई कैन एग्जाम्प्लीफाई दिस बाय जस्ट ड्राइंग योर ग्राफ। say this is a graph of a function, it's very randomly drawn, so just see this one is a local maxima, क्योंकि ये अपनी डोमेन में इसके अराउंड आपको एक छोटा सा इंटरवल जरूर मिलेगा, उस इंटरवल में वो सबसे बड़ा है। सिमिलरली दिस पॉइंट इज ऑल्सो अ लोकल मिनिमा, क्योंकि डोमेन में उसके अराउंड, उस पॉइंट के अराउंड एक छोटा सा इंटरवल जरूर मिलेगा, उस इंटरवल में इसका बिहेवियर क्या है, इस पॉइंट का बिहेवियर मिनिमम वैल्यू देने का। तो लोकली मैक्सिमा लोकली मिनिमा मींस कि पूरे डोमेन में वो सबसे बड़ी छोटी वैल्यूज नहीं है, बट एटलीस्ट उनके अराउंड आपको छोटे छोटे इंटरवल, द लेंथ ऑफ द इंटरवल डज नॉट मैटर, you will get some interval, it may be as small as interval it can be, but you will definitely get an interval around that point जिसमें वो maximum है, so वो local maxima और वो local minima। so ये सारे maxima minima मैक्सिमा मिनिमा मैक्सिमा मिनिमा ये सारे लोकल मैक्सिमा मिनिमा हैं। अब इस ग्राफ को दूर से विजुलाइज करो तो आई आस्क यू गिव मी द ग्लोबल मैक्सिमा, तो सबसे बड़ी वैल्यू दूर से दिख जाएगी, सो दिस वन इज द ग्लोबल मैक्सिमा and this one is the global minima, right? so ये जो टेस्ट बने हैं, फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट है, ये लोकल वैल्यूज के लिए बने हैं, ये आपको लोकल एक्सट्रीम वैल्यूज देंगे। उसके बाद जब आपने 2-3, मान लो एक ही एग्जिस्ट कर रहा है फिर तो वही है, अगर एक ही लोकल मैक्सिमम मिनिमा आएगा तो वही ग्लोबल है उस पर्टिकुलर इंटरवल में या उस पर्टिकुलर डोमेन में, बट एक से ज्यादा है तो आप उनकी वैल्यूज कंपेयर करके चूज कर सकते हो। अब ये कह रहा है मैं भी मैक्सिमा हूँ, ये कह रहा है मैं भी मैक्सिमा हूँ, ये कह रहा है मैं भी मैक्सिमम हूँ, सो हाउ यू आर गोइंग टू अल्टीमेटली गिव द अवार्ड कि एक्चुअल में कौन सा मैक्सिमम है, तो आप उनकी फंक्शन की वैल्यू कंपेयर करोगे। तो जो ग्लोबल मैक्सिमम मिनिमम होते हैं वो हमेशा फंक्शन की वैल्यू से डिसाइड होते हैं, ये चीज हमेशा याद रखना। ग्लोबल मैक्सिमम मिनिमम फाइंड करने के लिए कोई टेस्ट नहीं बना है, वो लोकल में से ही चूज किए जाते हैं, राइट?
तो पहले लोकल फाइंड करने होते हैं, फिर ग्लोबल फाइंड करने होते हैं, और ग्लोबल विल ऑलवेज बी डिसाइडेड बाय लुकिंग एट द फंक्शन वैल्यू. सो दैट्स व्हाई आप इन टेस्ट्स की स्टेटमेंट्स पढ़ोगे, आपको लोकल वर्ड यूज करा मिलेगा. इनके एग्जैक्ट डेफिनेशंस हैं मेरे नोट्स में कि लोकल मैक्सिमा जो मैंने समझाया आप लिखा हुआ है, दैट दिस इज व्हाट इट मीन्स. Okay, let's just do a very quick example and then we'll stop. So this is a function fxy is x square plus y square. The statement is find local extreme values, right? So find local extreme values. So we know the possible candidates for extreme values are the critical points and the boundary points. बाउंड्री पॉइंट्स तब होते हैं जब कोई इंटरवल गिवन हो. इंटरवल तो कोई गिवन नहीं है, I can see no interval is given, so boundary points का तो यहाँ पे कोई रोल ही नहीं है. So all what I have to do is to look for these, right? So find the derivative fx fy. So जब आपने डेरिवेटिव फाइंड कर लिए पार्शियल डेरिवेटिव्स, उसके बाद आपको देखना है कब कब ये जीरो है और कब कब ये नॉट डिफाइंड है. तो पहले हम नॉट डिफाइंड देख लेते हैं. सो यू कैन सी ये नॉट डिफाइंड तो कभी भी नहीं है. 2x 2y और ऑलवेज डिफाइंड. नॉट डिफाइंड वो इन्फिनिटी बन जाए या फिर 0/0 इस तरह की फॉर्म बन जाए. सो यू नो इन दैट केस वी हैव द नॉट डिफाइंड, बट अदरवाइज दिस इज बिकमिंग 0 बट नॉट बिकमिंग अनडिफाइंड. सो 0 सब्स्टिट्यूट करेंगे. सो यहां से पॉइंट आया, सो पॉइंट क्या आया आपका 0,0, राइट? सो पूरा उसको कंसिडर करना है एज अ वन पॉइंट, ये नहीं कि जहां जहां x 0 है वो सारे पॉइंट्स, because we have to look for the points which simultaneously making them 0. So the 0,0 is the only critical point, right? So एक ही पॉइंट आया है हमारे पास 0,0. अब हमें एक्चुअल में ये नहीं पता कि इस पे मैक्सिमा होगा कि मिनिमा होगा, राइट? फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट जस्ट टेल्स अस कि पॉइंट्स की कंडीशन क्या है, वो कंडीशन हमने लगा के पॉइंट्स निकाल लिए हैं. अब उस पॉइंट पे एक्चुअल में मैक्सिमा है कि मिनिमा है, दैट इंफॉर्मेशन इज नॉट कमिंग फ्रॉम फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट. दैट इज व्हाई हमें सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट चाहिए होगा कंफर्म करने के लिए. ये तो हम फर्स्ट फंक्शन ऑफ वन वेरिएबल के लिए भी ये सेम सिचुएशन था ना, कि पॉइंट्स निकालने के बाद कोई बता नहीं सकता कि उस पर मैक्सिमा है कि मिनिमा है, हमें सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट लगाना ही पड़ता है. यहाँ भी हम सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट करेंगे. सो आई विल गिव यू स्टेटमेंट ऑफ सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट इन द नेक्स्ट लेक्चर which will assure us that what is it. But before leaving the class, I'm just asking you one last question. So tell me, without second derivative test, can you tell me what is this point 0,0? Is this a maxima or is this a minima? Yes, this is a minima, because we know that fxy is this, so एक पॉइंट है जिसपे वैल्यूज कम है हमेशा, बाकी सब पॉइंट्स की वैल्यू से ज्यादा है. सो दैट इज व्हाई दिस इज मिनिमा एंड एक्चुअली दिस इज ग्लोबल मिनिमा, क्योंकि इंटरवल तो कोई गिवन नहीं था, डोमेन पूरी डोमेन में ही एक ग्लोबल मिनिमा है. तो दैट मीन्स फंक्शन को देख के भी हमें पता चल जाती हैं चीजें, बट it's this technique is not generalizable to all the questions because not all functions are very easy to look at. So isme, or rather we need to learn a general technique which is the second derivative test to qualify the information of knowing maxima or minima. I hope that is clear to all. Uday, you still have a question? मैम हमने मैम 12th में ये भी तो देखा था मैम कि हम फर्स्ट मैम सिर्फ फर्स्ट एक बार डिफरेंशिएट करके भी हम देख सकते थे कि मैक्सिमम मिनिमा है, या डबल करके भी देख सकते थे. दो तरीके होते थे ना. नहीं बेटा, फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट कहते थे, सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट. मैं वही बता रही हूँ ना, एक बार करने से, जैसे आपने ये क्वेश्चन किया था
ये वाला जो मैंने अभी यहाँ पे, ये एक बार करने से आपके पास, अब मान लो भूल जाओ कि आपको इस फंक्शन का ग्राफ पता है, राइट, जस्ट फॉरगेट। सो आपने इतना तक सॉल्व किया तो x इक्वल टू 0 आ गया। अब x इक्वल टू 0 पे क्या है, मैक्सिमा है कि मिनिमा है, वो कैसे बताओगे? वो हम शायद उधर ऐसे करते थे, हम पॉइंट डालकर करते थे, उसके आसपास एक पॉइंट ले लेते थे, उसका अगर डेरिवेटिव साइन चेंज कर रहा है प्लस से माइनस, वही सेम ही चीज होती है, साइन चेंज। देखो डेरिवेटिव, सेकंड डेरिवेटिव का पॉजिटिव होना इज इक्विवेलेंट टू कि फर्स्ट डेरिवेटिव का साइन चेंज होना, राइट। सेकंड डेरिवेटिव का पॉजिटिव होने का क्या मतलब होता है कि दिस काइंड ऑफ ग्राफ, सेकंड डेरिवेटिव पॉजिटिव मींस कनकेव अपवर्ड्स। तो मींस उसकी जो स्लोप है, जो dy by dx है, नेगेटिव से क्या हो रही है, पॉजिटिव। सो dy by dx इज चेंजिंग इट्स साइन, यू कैन सी ना, स्लोप इज बिकमिंग, देखो स्लोप 0 से होके जा रही है, स्लोप 0 बन रही है। तो कोई भी नंबर जब 0 बन रहा है तो ऑब्वियसली इन वन साइड इट कैन बी पॉजिटिव, ऑन अदर साइड इट कैन बी नेगेटिव, सो इट्स चेंजिंग साइन फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। सो आप कर सकते हो, वो वही चीज है, बाय लुकिंग एट दिस इज द सेम थिंग कि dy by dx मैम इज वो हिट एंड ट्रायल से हो गया मैम, इसलिए हम नहीं कर रहे। हाँ, बट वो हम जनरल टेक्निक नहीं है ना, वो हम सब क्वेश्चंस के लिए नहीं करेंगे। ओके, वी आर डन, द क्लास इज ओवर, द नेक्स्ट क्लास इज हियर, आई एम एंडिंग दिस।